Shh. Let's start. So last lecture में we did some SNC problems, right? Let's go ahead. So you should understand relation between electrostatics and gravity. Reason being, because we are completing SNC now, so whatever we do in SNC will be applicable to gravitation also. You can say SNC of electrostatics is equivalent to Earth. सही है ना? Also you should know कि if you look at the formula, F is equal to K which is 1/4 by epsilon naught, Q1 Q2 upon R square. Gravitation में we write formula for gravitation is what? It is G m1 m2 upon R square. So I can say that कि 1/4 by epsilon naught can be equal to G, correct? है ना? तो if you want epsilon naught, so what is the value? 1/4 pi G. Okay. Also you must know that कि positive, yeah, we can say negative charge is equal to M. ये याद रखो. Because electric field is attractive for negative charges, right? And gravity field is always attractive. So we can say the negative charge will be always applicable to M, or we can say that Q can be replaced by minus M. Example ले लो. For example, if they ask me question like this, let's say they ask me, there is a ring of mass M. There is a ring of mass M, radius R. What is the gravitational field by this ring at a distance x on the axis? So we know that E at axis का formula क्या है? KQX upon R square plus X square raised to 3/2. If you know this formula, therefore I can say that gravitational field here will be attractive, will be inverse, and that will be equal to G M X, but I put minus sign because you know that na कि Q will be replaced by minus M upon R square plus X square raised to 3/2. मिल गया. If they ask me what is gravitational potential, Vg, what do you answer? Gravitational potential at this point. Gx upon minus G minus M KQ upon root of R square plus X square. समझ में आया? समझे कि बाउंसर? Any questions here? So whatever we do in gravitation can be converted to electrostatics or vice versa. So we are doing electro first. तो electro से gravity हम transition कर सकते हैं. If you just substitute this, है ना? That means Gauss's law of magnetism कैसे है? Gravity क्या रहेगा? Gauss's law का integration of E dot dA is equal to Q enclosed upon epsilon naught. In gravitation, I write integration of gravitational field within a closed loop. So closed surface actually, not loop. ठीक है ना? Closed volume or surface we can say is equal to minus M, and epsilon naught के place पे I should put this ना. तो 4 pi G. That is Gauss's law for gravitation. Mass enclosed only. Mass enclosed within a Gaussian shape. Gauss's law for gravitation. ये किसका फॉर्मूला है? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या? फ्लक्स है गॉसेस लॉ, राइट? है ना? वो क्या फाइंड किया? ग्रेविटेशनल फ्लक्स. जैसे यहाँ पे we could use Gauss's law to find electric field, we can use Gauss's law यहाँ पे to find gravitational field. Exactly जो कॉन्सेप्ट आपने एक क्या वैल्यू क्या होगा? Q upon epsilon क्या है यहाँ पर? ग्रेविटेशन में फ्लक्स क्या होता है? हाँ? What is flux? Number of electric field lines passing through. Same apply यहाँ पे. What? पे क्या हो रहा है? Same. Gravitational lines. Number of gravitational field lines. ग्रेविटेशन फील्ड है. Yeah. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वैसे gravitational field lines है.
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, सेम 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। समझा? द ओनली थिंग इज कि वहां पे वी हैव इलेक्ट्रो में वी हैव 2 चार्जेस, राइट? ग्रेविटी में वो लिबर्टी नहीं है। समझा? ग्रेविटी में सिर्फ क्या बोलते हैं, यू हैव सिंगल मास। तो ऐसे नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट तो नहीं पढ़ते हम लोग, है ना? समझ में आया कि नहीं? अच्छा, ये पता है अगर, ठीक है, तो यू कैन फाइंड, समझ लो सेम एक और कर लेते हैं। व्हाट इफ आई आस्क यू व्हाट इज द, लेट्स से दिस अर्थ का मास वी नो इट इज 6 × 10⁻24 kgs and radius of earth is 6400 kilometers. Okay, and you know that we can treat earth as SNC because mass is distributed throughout the volume, isn't it? If I ask you what is gravitational field at distance small r, let's say this is point A, this is point B, तो दो केस पूछता हूँ, r less than r और r more than r, तो what is your answer? के में g आ जाएगा, GM r अपॉन, है ना? यहाँ पर समझ में आया क्या क्वेश्चंस? थोड़ा समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, अच्छा, अभी आई एम गोइंग टू कवर टनल प्रॉब्लम्स एंड दिस टनल प्रॉब्लम्स वी हैव नॉट डन इन ग्रेविटेशन, आई विल नॉट डू इन ग्रेविटेशन। और या तुमने एसएचएम में जो दिखा रहा है वो सब सॉल्व कर लेंगे, अभी एसएचएम वाले प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगे, ठीक है, और जो टनल प्रॉब्लम्स आगे ग्रेविटी में आने वाले हैं वो भी हम अभी ही कर लेते हैं। ओके, हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पर्सपेक्टिव से, व्हेन यू गो टू द चैप्टर यू विल सॉल्व इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रेविटेशन। समझ में आया? तो कर लेते, चलो प्रॉब्लम नंबर 1, टनल प्रॉब्लम। There is a SNC, okay, and यहाँ पे भी पूरा टनल, यहाँ पे एक SNC में से टनल बना दिया है, सेंटर पे से पास होते हैं, ये सेंटर है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q, M। SNC का we can say that density which is Q upon 4π/3 Q R cube, है ना, 4π/3। तो टोटल चार्ज you can assume as Q, density is constant, I'm assuming density is constant, okay। अभी ये चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस करके अगर छोड़ दे तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, क्वेश्चन नंबर 1। करो। एसएनसी आई गिव ना, एसएनसी दिया, राइट? तो एसएनसी दैट मींस चार्जेस थ्रू आउट द वॉल्यूम, करेक्ट? Now if you displace by distance x, what will happen? This charge will be at, from here it will go like this, right? X. This is negative charge. I'm taking a negative charge. ठीक है, M. So what is the force developed? यहाँ पे electric field at this point would be how much? Electric field at this point will be K और rho r by 3 epsilon कर लेते हैं ना, where r is x, distance from the center. That is easier, right? Okay, and hence therefore force on this q naught नहीं, q लिया है, अच्छा चलो यहाँ से q लिया है, okay, F will be equal to q into E, which is हो गया, k मिल गया ना, k, correct? तो फिर k effective is how much? Rho Q upon 3 epsilon naught. Therefore, time period will be equal to 2 pi root of m by k effective. So this is the oscillation of the charge. That's the answer. This one is easy. तो अच्छा करते रखो, ये समझ में आया? सेम सम सॉल्व करो, ठीक है, बट लेट टेक द चार्ज थोड़ा ऊपर, टनल इज लेट्स से ऊपर एट डिस्टेंस d। मतलब द क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन इज कि यू हैव एसएनसी, ओके, एसएनसी सेम रो इक्वल टू q अपॉन 4/3 pi r cube, ओके, द टनल इज डग थोड़ा ऊपर d डिस्टेंस पे, यहाँ पर
Okay, and the charge is here, q comma minus q comma m. Now the question asked to you is, if I displace this by x distance, will it oscillate? If yes, then find the time period. So will it perform SHM? If yes, then give me the time period. समझ में आया? ठीक है, this is SNC, charge is distributed throughout the volume. ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, बस खाली टनल को हमने सेंटर पे से नहीं पास कराया और ऊपर पास कराया. इट्स अ कॉर्ड. Getting it? This distance is small d. Radius of the SNC is r. Can you find it? R cube. See, if I displace this by x, okay, so this यहाँ पे the charge is here currently, and what is going to happen is कि at this point the electric field will point like this, है ना? It will be actually in direction of r vector, ना? Small r vector. मतलब if you, the electric field is like this. If you look, just draw it. Electric field vector is like this, isn't it? Because what is the formula for electric field? It is rho upon 3 epsilon naught, है ना, r vector. Okay, which means because of this electric field, ये जो चार्ज है इसको फोर्स कहाँ मिल रहा है? You get force towards center like this. Because negative charge है, you will experience force like this. This is your F, है ना? And then you also have your normal reaction like this, है ना? Weight को neglect करेंगे, बहुत छोटा है weight. Okay. तो N will be कॉन्टैक्ट में हाँ, because tunnel है ना, मतलब तो contact तो होगा ना. It's a tunnel, right? ठीक है. Okay. So which means, if you look at this carefully, if I call this angle as theta, इसको क्या theta बोल देते हैं हम लोग. इसको थीटा ले, किसको भी ले लो थीटा, इसको ले लो थीटा, है ना? इसको भी देख थीटा, you have f cos theta, f sin theta, right? है ना? So I can say that कि n will be equal to f cos theta and your f sin theta will be acting like a restoring force. समझे कि बाउंसर? This is the restoring force, right? Towards left. And that will bring it back to the original position. समझा कि नहीं? Force तो ऐसे लग रहा है ना उसको. देखो, if you look at this charge, the charge is here, is being pulled like this. It will not go inside. अभी उसको तोड़ के अंदर घुसाया क्या? नहीं होने वाला, right? क्या होगा फिर तोड़ के अंदर? तो एक कंपोनेंट क्या बोलते हैं उसके नॉर्मल को बैलेंस करेगा, जो दूसरा कंपोनेंट है उसको इस तरह पुल करेगा. तो it is allowed to move in the tunnel only, right? It can move in the tunnel. ठीक है, it cannot go ऐसा तोड़ के टनल इसमें घुसने वाला तो है नहीं. ठीक है, टनल में मूव करना है अगर, तो ये फोर्स ऐसा लग रहा है तो एक कंपोनेंट जो है उसको इस तरफ खींच लिया वापस. समझ में आएगा? तुमने उसको डिस्प्लेस वहां किया, फिर से वापस यहाँ आ रहा है, मतलब SHM करेगा. ठीक है, एंड नाउ यू पुट द वैल्यूज. f का वैल्यू क्या है? इट इज रो q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट QE, है ना, बराबर. एंड व्हाट इज दिस r? तो ये इफ यू लुक एट दिस ट्रायंगल, ये r है, ये x है और ये d है, तो यहाँ पे r आएगा, राइट, है ना. एंड देन यू हैव थीटा विल बी दिस, राइट, है ना. साइन थीटा विल बी हाउ मच? x by r. या यू कैन से दैट. ठीक है, r sin थीटा x ऐसे बोल सकते थे. ठीक है, तो व्हाट यू गेट, रो q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट x. व्हाट इज दिस? k effective. सेम ही है यार. K effective is rho q upon 3 epsilon naught. So time will be simply 2 pi root of m by K effective, which is the same answer. समझ आया कि नहीं? समझ आया कैसे सॉल्व किया? समझा कि समझा? समझ में आया अगर तो नेक्स्ट सम देखो. ठीक है, एक और टनल प्रॉब्लम ले लो. नेक्स्ट सम इज कि वी हैव SNC. ओके, माइनस q इज इनिशियली केप्ट एट दिस पॉइंट r/2 डिस्टेंस पे, माइनस q का m इसको यहाँ पे रखा है r/2 डिस्टेंस पे. अब यहाँ से छोड़ दिया इसको, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स इज पुलिंग इट. ठीक है, तो इट विल गो टुवर्ड्स राइट. द मोमेंट इट रीचेस द सेंटर, व्हाट इज द वेलोसिटी? वेरी सिंपल प्रॉब्लम इट इज, यू शुड बी एबल टू आंसर इट. द मोमेंट इट रीचेस द सेंटर, व्हाट इज द वेलोसिटी? ठीक है, बताओ व्हाट इज द, आई वांट द वैल्यू. ओके,
See, we can solve this problem with two methods. One, you can say that from the previous example, we can say कि velocity is max because you are releasing from this point. This is the point of release, right? ठीक है, तो यहाँ से release किया अगर released from here. So what I can say कि it will perform a periodic motion, okay, and hence you can say कि velocity will be maximum at the center, but that's the mean position, and you can do a omega से, and then you know that a का value will be r by 2 and omega is 2 pi by capital T, which you can take from the previous sum, isn't it? That is method number 1. So this is method 1. Method 2 can be conservation of energy. I can say that कि at this point the only force acting in the entire journey is electro force, and the electro force is actually what? Conservative force. So we can use Ke initial plus Pe initial is equal to Ke final plus Pe final. We can say that कि mechanical energy is conserved, correct? Because क्या बोलते हैं, the only force acting in the journey is what? Electro only. तो ये लिख सकते हैं. What is initial kinetic energy? 0. What is potential energy initial? It is QV. Okay, Q. What is V due to SNC? KQ by 3R, KQ by 2R square into 3R square KQ by 2 2R R square into Q into 3R square minus R square 3R square minus R square. ये R cube है ना? This is R cube, correct. ठीक है? This is R less than R. सिर्फ सानवी को और इसको ही पता है, बाकी लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है क्या? बताओ अभी क्या आएगा? तो QV लेंगे ना, तो QV V का वैल्यू K Q अपॉन 2R क्यूब, करेक्ट? 3R स्क्वायर माइनस R बाई 2 स्क्वायर, दैट विल बी क्या बोलते हैं योर PE इनिशियल प्लस फाइनल विल बी हाफ mv स्क्वायर, समझे? प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी Q 3 by 2 KQ by R. We have done this, right? Center of potential is 3 by 2 KQ by R. मैंने अलग से लिखाया था ये, है ना? ये अलग से लिखाया था मैंने, राइट? ठीक है, आई गॉट इन द पॉइंट. ठीक है, तो ये निकाला हमने पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल फार्मूला QV यूज किया है, V का फार्मूला हमको पता है, समझा क्या? एंड देन यू सॉल्व इट, यू शुड बी गेटिंग द सेम आंसर. R root of R square Q rho upon 12 and epsilon. कोई आंसर है, दोनों से सेम आंसर आएगा, मैं तो मेथड बता रहा हूँ बस. तो यू शुड नो बोथ द मेथड्स, समझा क्या? मैंने V dV by dx किया. किसको? Force to V dV by dx से acceleration से किया. हाँ वैसे भी आ रहा है. ऐसे भी आएगा. तो व्हाट यू हैव डन की कहते हैं मेथड 3. तुमने बोला कि F निकाल लिया तुमने, है ना? दैट इज Q into E and then you found A, है ना? which is F upon M. then instead V dV by dx करके you can find V and limits will be 0 to V, है ना? good, इसे भी कर सकते. I think all three methods are understood here, right? You can use periodic motion, or we can use your conservation of energy, or we can use FA and then V, kinematics. ठीक है, have you understood this? If yes, then let's go for the next one. Here is the next problem. Okay, look at this. It's a very beautiful problem. यहाँ पे क्या किया? There's a positive charge, okay, Q, comma M. It is given velocity V. Can you see this? एक velocity V दिया है इसको C की तरफ. C is the other end of the tunnel. Okay, तो we have made a tunnel at R by 2. ठीक है, R by 2 tunnel बना के रखा है. यहाँ से velocity V दिया है. बोला कितना velocity इसको दे हम लोग, so that it reaches the other end. Find the minimum velocity V given so that it reaches the other end. समझा क्या? Find the minimum velocity V given so it reaches the other end of the tunnel. समझ में आया क्वेश्चन? टनल इज dug at R by 2 distance. इस एंड से from one end I am giving velocity V to this Q comma M. What should the minimum value of V so that it is able to reach at the other end? That's the question. Try.
Okay. So what do we have? So the idea is कि when you use your, obviously you use WET, right? And then the common mistake that we make here is this. If you take this as initial point, this as final point. ये नहीं करना है. ये initial है अपना और सेंटर फाइनल है. तो यहाँ तक पहुंच गया तो उसका तो धक्का मार के लेके जाएगा वो. रिपल्शन है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव. यहाँ तक वेलोसिटी आ गया, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया अगर, ठीक है, उसके आगे तो वो लेके चले जाएगा. समझ में आएगी नहीं? ठीक है, तो तुमको सिर्फ पहुंचाना है सेंटर तक ही है. ठीक है, फिर देखते हैं. नहीं सेम नहीं आएगा सर. If you conserve energy from here to here, obviously the values will be different. Okay, so you have to conserve only from this point to center point. तो यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, उसके बाद तो वो उसको फेंक देगा. तो देखो एनर्जी कहाँ तक लानी पड़ेगी उसको सेंटर तक ले आने के लिए. समझा? धक्का मार मार के यहाँ तक ले आना पड़ता है. यहाँ तक ले आ गया बस काम खत्म. जस्ट यहाँ तक पहुंचा दो, काम खत्म. ठीक है. तो what is the half m v square is your initial velocity. ठीक है. It's initial kinetic energy and then potential energy will be how much? Q. What is this distance? R only, right? तो KQ by R ना? है ना? Okay. सरफेस पे ना? लास्ट समय जहाँ मैं रो में कर रहे हो क्या तुम लोग? रो में कर रहे हो तो रो में कर लेते हैं. रो में क्या आएगा? R by R. ठीक है, इज इक्वल टू, दिस विल बी 0. जस्ट रीच करना उस पॉइंट पे, सेंटर वाले पॉइंट पे, एंड देन पोटेंशियल एनर्जी भी के, अरे मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? सॉरी वही के क्यू अपॉन 2r क्यूब. बट यहाँ पे r का आर स्क्वायर लिखोगे ना तो क्या आएगा? घूम फिर के तो वही आना था. के क्यू बाई आर था, बराबर तो लिखा था मैंने. के क्यू बाई आर सही था, कंफ्यूज कर रहे हो. 0 प्लस 3/2 कैसे? सेंटर पे ना क्या? ये सेंटर है ना भाई, ये थोड़ा सेंटर है. व्हाट इज दिस? अबे भाई ये सेंटर है ना, दिस इज नॉट अ सेंटर. ये ट्रैजेक्टरी का सेंटर है भाई, यहाँ का सेंटर तो ना है. व्हाट आर यू सेइंग? Q अपॉन 2r स्क्वायर है ना, 3r स्क्वायर माइनस r बाई 2, नीचे r क्यूब. करेक्ट, 3/2 है ना, अभी सही है. सर इसको लास्ट से जैसे फोर्स के साथ डिवाइड करके नहीं मिलेगा. करके देखो. वो उससे Too much of it is always, energy conservation is always easier. You should understand that point. उससे I am getting root of 5/12 r square q rho upon 12 epsilon सब रूट में. क्या इसके 3r फोर्स वाला See, you must understand, solving via energy conservation is always easier. If you solve this, you'll get the value. So यहाँ पे और central idea. Should write this note. फिर just r into ठीक है, we have to take, if this is the point A, this is the point C, this is the point B, so we have to do energy conservation from point A to point B only. Okay, this is your energy conservation यहाँ से यहाँ. No need to go till C. If you are able to reach B, just B पहुँच गया, उसका रिपल्शन से उसको धक्का मार देगा. तो पूरा एनर्जी लग रहा है आपको A से B जाने में. 3/4 under root of 3/4 k cube by r. ए क्यूब को क्या बोलते हैं उसको? See, now there are n number of problems possible. We can have a charge q. बोला सेंटर, मैंने यहाँ से यहाँ ले गया इसको, यहाँ से सेंटर पे लाने का वर्क पूछा तो भी तुम निकाल सकते हो. The final point will change, that's it. है ना? Instead of I made something little complicated, but they can ask a question like this also कि there's a charge at the surface, उसको सेंटर पे ले आना है तो कितना वेलोसिटी दे उसको. तो खाली वहाँ पे जो फाइनल पोटेंशियल तुमने वो लिखा है उसकी जगह पे 3/2 k क्यूब आ जाएगा, है ना? इनिशियल तो यही है, इसमें क्यों चेंज होगा? इनिशियल भी, अगर यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल है, सरफेस है ना,
सरफेस पे और यहाँ से तो वो सेम होगा ना, ठीक है. इज मेकिंग सेंस. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज हेल्पफुल इन सच केसेस. लेट्स गो फॉर न्यू टॉपिक लाइक कंडक्टिंग कैविटीज. Conducting cavities. Conducting cavities. So let's say we have a situation. One second. Okay. So let's say there's a material, metal का ब्लॉक समझ लो या metal का sphere समझ लो, ठीक है. उसमें से मैंने एक कैविटी क्रिएट कर दिया, मतलब I removed certain part like this. ऐसे रिमूव कर दिया उसमें से. तो मटेरियल इज प्रेजेंट ओनली ऑन द सी. यू कैन सी दिस एरिया में मटेरियल प्रेजेंट है. तो देयर इज अ कैविटी हियर, दिस कैविटी आउटसाइड आल्सो यू कैन से. तो दिस इज द मीट ऑफ द कंडक्टर. यू कैन से यहाँ पे क्या बोलते हैं, मटेरियल प्रेजेंट है. समझ में आ रहा है क्या? ओके. नाउ इफ आई गिव अ चार्ज Q टू दिस कंडक्टर, तो यू नो दैट व्हाट विल हैपन. चार्ज विल रिसाइड इन द outer surface. So charge will reside on the outer surface. So it will go like this. Diagram should become like this. We have done this in last class. Ki any charge given to a conductor will reside on the outer surface. So it will go like this. Any questions? ये समझ में आया क्या? तो ये चार्ज क्यों ऐसे आ जाएगा? हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसे पता है क्या? There are 3 points. जैसे point A inside, ये सेंटर ले लो. So point A inside, there is a point B here and this point C आउटसाइड. ठीक है. ये पॉइंट ए जो है वो कैविटी के अंदर है, ये वाले कैविटी के अंदर. पॉइंट बी इज इन द मेटल एंड सी इज आउटसाइड. कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, एट बी, एट सी? ऑल्सो कैन यू गिव मी पोटेंशियल वी ए, वी बी, वी सी? हाँ, E at A will be 0. KQ by 2. KQ by R square into RQ minus R1. हाँ. कंडक्टर के मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या? C के लिए देने लगते हैं R greater than R. होता है क्या? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाए, इसको थोड़ा अभी के लिए साइड में रखते हैं, रुको. ये कर लेते हैं. एंड सी के लिए क्या होगा? स्फीयर्स बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज केप्ट एट सेंटर, है ना? समझ आया कि बाउंसर? समझ आया कैसे किया हमने? पक्का? श्योर? अच्छा. ये वाला ही बता ही सकते हो क्या तुम लोग? कैन यू गिव मी वी ए, वी बी, वी सी? बता ही सकते हो, कर ही लेते. चलो बोलो. बताओ तुम बताओ. KQ by R है क्या VB? कौन सा आर? दे आर 2 आर्स. ये R1 है, ये R2 है. कौन सा आर? R2 minus R1. अब बताओ. B1. B तक का डिस्टेंस क्या रहेगा? स्मॉल आर. B तक का. स्मॉल आर. हाँ, तो KQ by small r. C के लिए होएगा KQ by small r. नहीं, C के लिए होएगा KQ by small r. चलो सुनो, ये प्रॉब्लम देखने से अच्छा तुम इसको ऐसे समझो. There is a shell which is charged. अब बताओ,
If I take any point inside, what is the potential? If I take any point inside, what is the potential for shell? KQ by capital R. If I take any point outside, what is the potential? KQ by small r. अब ये A और B तो अंदर ही है ना इसके, तो क्या आंसर आएगा दोनों का मिला के? KQ by which R? Which R? R2. अरे R1 कैसे हो सकता है? चार्ज वहां पे है क्या? इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज आर डिसाइडेड बाय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर है क्या? तो इसके ऊपर है ना. तो पढ़ाया था ना मैंने कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे? तो वो स्फीयर के हिसाब से लेंगे हम लोग. समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? समझा? अगर कोई भी पॉइंट अंदर है तो व्हाट इज द फॉर्मूला? KQ by capital R. कोई भी पॉइंट अगर अंदर है तो you have to take radius of the sphere. कोई पॉइंट बाहर है तो you have to take radius of the distance from the center. है ना? कोई भी पॉइंट अंदर है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा बिकॉज अंदर पूरा फील्ड जीरो है. ठीक है, जहां पे फील्ड जीरो है वहां पोटेंशियल कांस्टेंट है. कहीं भी ले लो आंसर विल बी KQ by capital R ओनली. पर बाहर के लिए KQ by small r. कौन सा R लोगे? कंडक्टिंग कैविटी के हिसाब से you have to see the distribution कहां पे है. तो वहां आप उसके हिसाब से देखोगे. R2 आ गया यहाँ पर. और व्हाट दिस गाय? KQ by small r. समझ में आया क्या अपने को? पक्का? श्योर? अच्छा चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं. ये वाला समझ में आया? अब ये देख, ठीक है. सिचुएशन नंबर 2, where we have the cavity. ये कंडक्टिंग कैविटी है, ये R1, ये R2. ओके, and there is a charge plus Q inside by some mechanism. there is a charge inside. यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है. Question is now the same. I'll give you 2 minutes to think over this. Find EA, EB, EC and VA, VB, VC. Try करो चलो. BC वही same point. A, B, C. Find electric field and potential. Think over this. देखो, this is a conducting cavity. By some mechanism, I have put a charge plus Q inside. ठीक है. What will be the electric field and electric potential at all these points? समझ में आया क्वेश्चन? समझा? मैंने सिनेरियो नंबर 1 क्या लिया है जहाँ पे चार्ज इज गिवन फ्रॉम द आउटसाइड. एक सिनेरियो नंबर 2 क्या ले रहा हूँ मैं जहाँ पे ऑलरेडी एक चार्ज प्रेजेंट है तो क्या होएगा. ठीक है. सिनेरियो नंबर 3 क्या लूंगा मैं? दोनों मिक्स करूंगा मैं. ठीक है, पहले ये कर लो फिर आते हैं इसके ऊपर. चलो ये लिखो फटाफट and then tell me about this. Let's talk about it. So you're saying, so we have tried to understand the charge distribution first. So we know that if there is a negative positive charge here, okay, this will create an electric field inside. है ना? Positive electric field बनेगा. ठीक है, and because of the electric field, positive charges will be repelled and negative will be attracted, exposed. तो ये inner surface में ऐसे negative charge आने चाहिए, तो -Q आना चाहिए. एग्जैक्टली सेम चार्ज आना चाहिए. ठीक है, क्यों आना चाहिए एग्जैक्ट सेम चार्ज? आई टेल यू, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि इफ आई टेक अ गॉसियन स्फीयर हियर, ठीक है, आई नो दैट हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. दैट मींस नेट एनक्लोज्ड क्लास सॉरी नेट चार्ज एनक्लोज्ड शुड आल्सो बी 0. तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्लस Q नहीं रह सकता. समझ में? अगर ये -Q इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है, तो नेट एनक्लोज्ड चार्ज विल नॉट बी 0. So, समझ में आ रहा है क्या? You understand? If the diagram was like this, plus Q, and I make a Gaussian sphere here, ठीक है? Problem is कि I'll get Q enclosed as Q, and then I'll get E का some non-zero value, which is not true. It is violation. कंडक्टर का वायलेशन हो जाएगा, राइट? कंडक्टर में तब तक चार्जेस मूव होते जब तक वो सेटल होके ऐसा ना कर दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए. समझ में आ रहा है क्या? तो दिस विल मतलब इसका मतलब क्या है? ये प्लस Q ऐसे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता. There has to be a -Q so that कि net charge becomes 0. तो I said कि -Q will be induced like this. चमका? तो ये लिख देते हैं हम लोग. ठीक है, एक पॉइंट ऐसे लिखा देता हूँ. -Q charge must be induced, है ना, on the inner surface so that Q enclosed becomes 0 and electric field inside the conductor, conducting material I'm talking about, the meat, okay, is equal to 0. यहाँ पे यहाँ की बात चल रही है. चमका? तो इतना तो समझ में आया कि -Q आना चाहिए. तो राइट नाउ आई हैव
सिचुएशन लाइक दिस कि देयर इज अ माइनस प्लस क्यू यहाँ पे और एक माइनस क्यू ऐसे, तो बाहर की तो प्लस क्यों नहीं आएगा? ठीक है, रुको रुको आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, ठीक है आएगा, बिकॉज नाउ लेट्स कम टू हिज पॉइंट, व्हाट इज सेइंग कि माइनस क्यू इंड्यूस हुआ है कंडक्टर में, तो प्लस क्यू बाहर आना चाहिए, क्यों आना चाहिए बाहर? कंडक्टर तो न्यूट्रल है, कंडक्टर तो न्यूट्रल है ना यार, ठीक है, और कंडक्टर न्यूट्रल, और प्रॉब्लम दूसरा क्या है कि मैं कहीं भी यहाँ पे कहीं भी मैं गॉसियन सरफेस बनाऊं, ठीक है, ये कोई भी गॉसियन सरफेस में वी शुड नॉट हैव एनी चार्ज, मतलब एकदम पेरीफेरी पे भी गॉसियन सरफेस बनाया मैंने अगर, ठीक है, तो भी नेट चार्ज क्या होना चाहिए, एकदम यहां तक तो कोई चार्ज आ ही नहीं सकता, एकदम पेरीफेरी तक, ठीक है, कंडक्टर न्यूट्रल था और कंडक्टर माइनस चार्ज यहाँ पे दिया है, तो उसका प्लस चार्ज कहाँ गया भाई, तो बाहर सरफेस पे आना पड़ेगा उसको, तो दैट्स व्हाई प्लस चार्ज हैज टू बी इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस, कंपल्सरी, इट हैज टू बी, देयर इज नो ऑप्शन, ठीक है, समझ में आया क्या? तो प्लस क्यू इज ऑल्सो इंड्यूस्ड, तो प्लस क्यू लिख देते हैं, सेकंड पॉइंट लिख देते हैं कि प्लस क्यू इज इंड्यूस्ड ऑन द आउटर सरफेस, ठीक है, समझ में आया क्या? सो बाय वाई, बिकॉज सिंस कंडक्टर वॉज न्यूट्रल, कंडक्टर इज न्यूट्रल, है ना, नेट चार्ज कंडक्टर जीरो होता है ना, इसलिए उसने अगर माइनस किया तो प्लस भी उसका कहीं जाएगा। एनी क्वेश्चन हियर? ठीक है, एक तो कंडक्टर न्यूट्रल है, दूसरा क्या बोलते हैं चार्ज को अंदर तक आने की कोई ये ना परमिशन नहीं है, तो उसको बचता है सिर्फ आउटर सरफेस, दैट्स द रीजन इज गोइंग ऑन आउटर सरफेस। So finally I can say that I went from here to here, then we talked about this point, so finally I have diagram like this, this is the final diagram, मतलब this is what you have to assume, you have to assume that there are three systems यहाँ पे, एक प्लस क्यू सेंटर में, एक शेल ले लो माइनस क्यू का S1 और एक और शेल R2 पे S2, ये है तुम्हारा, ये इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट लाइक दिस, जहां पे पता नहीं चार्ज कैसे कैसे क्या हो रहा है, यू सॉल्व लाइक दिस, समझा? अब तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पूछेगा तो कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ऑफ दिस गाय एंड दिस गाय, कोई पोटेंशियल भी हो तो सेम मेथड, समझ में आया क्या? कैन यू सॉल्व इट राइट नाउ? तो माय क्वेश्चन टू यू गाइस, गिव मी द वैल्यू ऑफ EA, EB एंड EC एंड सेम VA, VB, VC, समझ में आया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? You have any question? I'll tell you this reason again if you are not understood. If there is a plus q here, I make a Gaussian surface, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर Gaussian surface बनाया यहाँ पे पेपर कर देता हूँ, plus q cannot stay alone, ठीक है, because if plus q stays alone, it will violate the this thing कि q enclosed will not be zero and hence क्या बोलते हैं E electric field will not be zero, तो मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, तो plus q alone cannot stay in the cavity, कैविटी में plus q नहीं रह सकता, समझा ना? ठीक है, तो I'll just write plus q cannot stay alone in cavity, that liberty you don't have, उसके साथ साथ माइनस क्यू होना पड़ेगा, सो दैट क्या बोलते हैं नेट चार्ज बिकम जीरो, ओके, तो ये समझ में आया कि माइनस क्यू आएगा, अब माइनस क्यू आ गया तो न्यूट्रल, कंडक्टर न्यूट्रल था तो उसका माइनस यहाँ पे, तो प्लस कहीं तो होना पड़ेगा, और कहाँ होना पड़ेगा उसको, पूरे पेरीफेरी तक अलाउड नहीं है, तो सरफेस पे जा पाएगा बस, तो इसलिए प्लस क्यू बाहर भी आ गया, दैट्स हाउ इंडक्शन वर्क्स। यहाँ कंडक्टर है इसलिए सब हो रहा है, इंसुलेटर में पता नहीं क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, बट कैसे होगा देखेंगे, समझा? कंडक्टिंग कैविटी से फंडा, कंडक्टिंग कैविटी में अंदर चार्ज डाल दिया तो इनर सरफेस में चार्ज इंड्यूस होता है और आउटर सरफेस में, बाहर चार्ज डाला तो सिर्फ बाहर ही रहता है बस, अगर पॉइंट, ये पॉइंट मुझे बताना था तुमको, ठीक है, इन अ कंडक्टिंग कैविटी इफ यू पुट अ चार्ज फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, तो दैट चार्ज विल स्टे आउटसाइड ओनली, ओके, यू पुट अ चार्ज इनसाइड then there will be some induction inside as well as outside, so this is the final diagram. Any questions? Now try finding fields and potential. ये हुआ क्या? चलो मिलके करते आ जाओ, रुके अभी थोड़ा ध्यान दो, मतलब दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके, सो वी हैव द सिस्टम इज reduced to this system now. We have a plus q here, there's a minus q here, and there's a plus q here. Let's call this as S1, this is S2. Okay, and we are looking for electric field at A, है ना? Electric field at B, तो ऐसे पॉइंट लेते हैं A B C। अब A B C में क्या बोलते हैं, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड देगा?
Q देगा, S1 देगा और S2 देगा, एंड उसके वजह से हमको नेट भी मिल जाएगा, राइट? नेट, ई नेट। आ जाओ, तो एट ए इज द पॉइंट हियर, यहाँ पर है पॉइंट, राइट? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q? पॉइंट चार्ज, तो क्या आएगा? KQ बाय स्मॉल r। समझ रहा है? पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज KQ स्मॉल r स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर, माय बैड, r स्क्वायर। ठीक है ना? बिकॉज ऑफ दिस शेल, शेल के अंदर है तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड, शेल के अंदर है नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आंसर आया KQ बाय r स्क्वायर। समझे कि नहीं? नेक्स्ट, हाउ अबाउट पॉइंट बी विच इज हियर? तो बिकॉज ऑफ दिस गाय, बिकॉज ऑफ द प्लस Q, KQ बाय r स्क्वायर, राइट? प्लस Q के लिए KQ बाय r स्क्वायर, एंड बिकॉज ऑफ माइनस Q के तो बाहर है वो, तो माइनस KQ बाय r स्क्वायर, है ना? एंड देन बिकॉज ऑफ S2 0, तो आंसर आया 0। आना भी चाहिए था बिकॉज मटेरियल में, सॉरी सरफेस पे है क्या पॉइंट? सी पॉइंट, सी पॉइंट, ओके। सी के लिए, सबके लिए बाहर है, तो KQ बाय r स्क्वायर माइनस KQ बाय r स्क्वायर प्लस KQ बाय r स्क्वायर, KQ बाय r स्क्वायर। समझ में आया क्या? लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल नाउ। चलो सेम टेबल, आ जाओ, बता दो फटाफट। ABC, ठीक है, Q S1 S2, टेल मी बिकॉज ऑफ दिस KQ बाय स्मॉल r, बिकॉज ऑफ दिस गाय, बिकॉज ऑफ द बड़ा वाला। अच्छा, ये R1 R2 लिख देते क्या? ये R1 और ये R2 कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। S1 के अंदर है, S1 के तो अंदर है ना, तो फॉर्मूला क्या आएगा? K माइनस Q अपॉन R1, S1 के अंदर, ठीक है, माइनस बिकॉज S1 का चार्ज कितना है भाई? ठीक है, समझ में आया क्या? एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, S2, S2 के अंदर की बाहर? पॉइंट A इज अंदर, अंदर तो फॉर्मूला क्या है? KQ बाय रेडियस ऑफ द स्फीयर विच इज R2। व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग? यू आर गेटिंग KQ बाय R माइनस KQ बाय R1 प्लस KQ बाय R2, दैट्स द आंसर गाइस। ये है आंसर। नेक्स्ट B, आ जाओ, B के लिए बताओ। B यहाँ पर है, फॉर दिस चार्ज इट विल बी KQ बाय R ओनली, ठीक है। फॉर S1 इट इज आउटसाइड, तो KQ1 अपॉन स्मॉल r, एंड इसके लिए क्या होगा? KQ1 क्यों लिखा मैंने? KQ ना, KQ बाय, एंड इसके लिए इनसाइड, तो KQ बाय R2, तो आंसर विल बी KQ बाय R2। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। नेक्स्ट C, KQ बाय R, KQ बाय R एंड KQ बाय R, KQ बाय R। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो आंसर्स मिल रहा है फाइनल वाले, ये सब, ये क्या बता रहा है कि ये दो आंसर मुझे ये बता रहा है कि बेस लाइक पॉइंट चार्ज केप्ट इन सेंटर, जिसे पॉइंट चार्ज बिहेवियर ना, राइट? ये पॉइंट चार्ज बिहेवियर हो गया, और ये इलेक्ट्रिकल यहाँ पे 0, तो दैट मीन्स गॉसेस लॉ इज फॉलोड, राइट? है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं, मटेरियल में 0 रहेगा, राइट? वो सब चीज़ फॉलो हो रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? एनी क्वेश्चंस एनीवन? पक्का? एक सम दूं मैं तुम लोग को, ये लिखो फटाफट, एक सम ले लो। ये लिख, अच्छा एक मिनट, एक सम दे देता हूँ, फिर तुम लिखते बैठो। हियर इज अ सम फॉर यू। दिस इज R, this is 3R conducting cavity like this। यहाँ पे चार्ज है 2Q माइनस 2Q, और बाहर से चार्ज दिया है इसको 5Q। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट C।
ठीक है, आई होप यू नो व्हाट इज एबीसी, इनसाइड द कैविटी, इन द मटेरियल एंड आउटसाइड। ठीक है, तो पहले ये लिख लो फटाफट एंड देन गिव मी द आंसर। इसके बाद आप अर्थिंग स्टार्ट करो। हाँ बोलो क्या आएगा बताओ। Sorry. So this 5q will be outside and this minus 2q is here, right? Now what should happen? Tell me. Something should happen or nothing? Shh. Ah. Tell me. Minus 2q is here, right? Can this minus 2q stay inside alone? Plus 2q has to be there induced on the inner surface. Just the plus 2q induced here. This was neutral initially, so minus 2q should appear outside. Now what is the net charge? Tell me. You have three systems are minus 2q, यहाँ पे plus 2q का एक shell and then plus 3q का shell, S1 S2. That's the system. You have a system of three things: a point charge, a shell, and then one more shell. Isn't it? This you got on your own. अच्छा ठीक है. Next, electric field point A. I want electric field here at A. These are point A. Tell me about electric field point A. Who will give electric field point A? Minus 2 to K 2Q upon R square. And then what else? Will this shell give electric field to this point A? No, because it's inside. How about the outer shell? No. ठीक है, that's the answer. Plus 0 plus 0. Correct? है ना? It should, this electric field will be related inwards, isn't it? Negative आना चाहिए, ऐसे अंदर की तरफ आएगा. Negative electric field है. समझा? Next. Tell me about VB. बोलो. Who will give potential at point B? Point B is here. ठीक है, minus 2q बताओ पहले. K minus 2q upon what should I put? R1. Are you sure? For this minus 2q is a point charge, ना? Small r. समझ में आया? समझा? She put small r. Correct. Next, plus. Tell me. Upon R1. Point B is here. It's not on the surface of S1. It is outside the shell, right? अपन R square रहेगा उसमें। उसको बोलने तो पहले मैं तुम्हारा आंसर करूंगा. हाँ क्या आर स्मॉल आर की बिगाड़ विचार. नो व्हाई इट विल बी डिफरेंट. पॉइंट तो वही है, डिस्टेंस का कैसा होगा? स्मॉल आर ही होगा. व्हाई इट विल बी डिफरेंट? पॉइंट तो वही है ना. ठीक है, गेटिंग इट? समझा? फॉर पॉइंट चार्ज एज वेल एज फॉर द स्फीयर. ठीक है, इट्स आउटसाइड द स्फीयर ओनली, आउटसाइड द पॉइंट चार्ज. ठीक है, नेक्स्ट प्लस. टेल मी. प्लस इसके वजह से कोई पोटेंशियल आएगा क्या? पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस बिगर शेल. देयर वोंट बी एनी फील्ड बट देयर विल बी पोटेंशियल. समझ रहा है? व्हाट इज द फॉर्मूला? बोलो. K 3Q upon point is inside or outside? Then if it is inside, then what do you take? Radius of the shell. What is the shell radius? देखो 3R. That's the answer. Did you get this concept properly? चलो now you should be able to answer C वाला. C का बोलो. चलो. EC. Point C is outside here ना. ठीक है. तो K minus 2Q upon R square. Then plus K 2Q upon small r square plus K 3Q upon outside only. Getting it? Remember the formula for point charge और शेयर का, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको. सबको समझ में आया क्या कि एक और करना है? जल्दी बोलो. सबको समझ में आया कि एक और करना है? पक्का? सॉरी? पॉइंट सी इज आउटसाइड है ना, सरफेस पे है क्या? रुको एक और तुमसे पूछता हूँ. रुको. गिव मी वीसी. वीसी बताओ निशान. अभी यहाँ पे बताओ.
देख के डायग्राम देख के बताओ चलो। सी मतलब पॉइंट इज आउटसाइड, ये सी माई के माइनस 2q अपॉन क्या लो स्मॉल आर 2k बाय स्मॉल आर। यस समझा। चलो एक और बताओ, पोटेंशियलिटी वी ए बोलो बोलो। माइनस के माइनस 2q अपॉन क्या लो स्मॉल आर भाई। पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस लेगा ना तो स्मॉल आर ही तो होगा। ठीक है, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला स्मॉल आर ही है कि -2 इज पॉइंट चार्ज राइट। इज इट अ शेल? तो विच फॉर्मूला यू यूज? पॉइंट चार्ज फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज kq बाय r, दैट्स इट। ठीक है, प्लस 2k3 हाँ इनसाइड तो बोलो k 2q अपॉन r1। r1 क्या लिखते हैं कैपिटल R प्लस। हाँ चलो नेक्स्ट। 3 के लिए भी अंदर ही है वो। ठीक है तो क्या लूंगा 3r। एवरीवन गॉट दिस आंसर? डू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? सबको समझ में आया? नहीं समझ में तो और एग्जांपल ले सकता हूँ मैं। पक्का समझ में आया तो ठीक, नहीं तो और एग्जांपल ले सकते हैं। श्योर एवरीवन गॉट इट? यू कैन माइनस देखो मैंने यहाँ पे माइनस लिखा, यहाँ पे नहीं लिखा बिकॉज यहाँ पे कोई और फील्ड नहीं है ना, इसलिए तो माइनस लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस ओनली इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन इज इनवर्स। ओके लिखा तो भी चलेगा। हाँ एनीथिंग एल्स? डिड यू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली? इफ यू वांट आई कैन टेक मोर एग्जांपल। शर्माओ मत, और एग्जांपल ले सकते हैं आप। लेना है क्या एग्जांपल और? पक्का देख लो भाई, लग रहा है तो ले लूंगा मैं। वेयर C is what point? Outside the shell मतलब on the shell or outside? Outside. Okay. What is the distance of that C from the center? हाँ 3r कैसे हो सकता है? C अगर यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस 3r कैसे हो सकता है? Distance of any point from center is considered as small r. समझे? Okay. But in the previous sum, we took C as a point outside. Yeah. Outside only we took. But can you go to Yes. Tell me. सबके लिए स्मॉल आर लिखा है। दे राइट R2 लिखा कहीं पे? गेटिंग इट? समझा क्या? आई थिंक आई टेक वन मोर एग्जांपल। कॉपी दिस क्विकली, आई टेक वन मोर एग्जांपल। आई डोंट फील कन्विंस्ड इनफ। देख लो एक बार। शील्डिंग विल टेक 5 मिनट्स। तुम ये लिख तो लो। शील्डिंग विल टेक अर्थिंग इसका अर्थिंग नहीं ले रहा आज सिर्फ शील्डिंग लेके खत्म करो। नहीं होता ऑनलाइन तभी। सॉल्व दिस और साथ में सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है चलो पेन डाउन चाहिए मुझे। ठीक है विल सॉल्व इट टुगेदर। इसका मतलब तुम आंसर करोगे, मैं लिखूंगा, गलत किया तो पिटाई। तो यहाँ पे यू हैव लेट्स से प्लस 2q। ओके प्लस 2q एट द सेंटर एंड बाहर से चार्ज दे रहे हैं -4q। ठीक है फर्स्ट यू टेल मी, जिसको पूछूंगा वही बताएगा। ठीक है टेल मी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ रोहन बोलो। मैं अंदर +2q रहेगा तो उसके अंदर वाले के सरफेस पे -2q रहेगा। फिर बाहर वापस +2q आएगा उसका इंडक्शन का और फिर -4q। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? -2q। आई होप एवरीवन इज कन्विंस्ड।
किसको डाउट है क्या इसमें? चलो ये समझ में आया। निहारिका टेल मी पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बी वी बी, बोलो। minus -2q by small r k minus 2q by small r plus प्लस k, हाँ बोलो। 2q upon small r small r then minus 2q that be small r, but the second one will be 2r. this is what is this? Small r. Small r, अच्छा। And then second one should be, this should be कैसे, this should be r. That is your answer. अच्छा सानी, you tell me about VB. फ्लो में जाओ, मतलब प्रॉपर यहाँ पे देख के बताओ। फ्लो में, हाँ बोलो। पहले माइनस 2q क्यों लेते हो? इस यहाँ से शुरू करो ना, सेंटर से शुरू करो, सेंटर से शुरू करो। Oh wait, I will do that. Sir? Kq Which r? Small or capital? Plus minus 2q by plus plus minus 2q by 5. did you get your mistake? Yeah. What is the mistake? I switched plus 2 and minus 2 by same. नहीं, you got this. Yeah, so that would be on the first one, but I thought the second charge was plus 2. What is the formula for a, if the point is inside a shell, what is the radius of the shell? If it's outside, then small r. समझा गया? What is the logic? Wait, इसमें why did we define? Because who will give potential at this point? तीन लोग पोटेंशियल दे रहे हैं। एक अंदर वाला जो पॉइंट चार्ज है प्लस 2q वो दे रहा है, फिर ये शेल S1 का है और ये शेल S2 का है। समझ रहे हो तुमको? S1 में कितना चार्ज है? उसका रेडियस कितना है? बट वो पॉइंट अंदर है कि बाहर है? बी आउटसाइड, तो इसलिए स्मॉल आर लिया। S2 का कितना चार्ज है? रेडियस कितना है उसका? इज बी इनसाइड इट और आउटसाइड इट? व्हाट शुड आई टेक? समझ में आया? पक्का? एक और पूछना, देखो तनिष पटेल, रेडी रहो। What is the electric field at point A? Point A is बोलो, शुरू करो। ठीक है, बोल बोलो बोलो। क्या बताओ, क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला चाहिए? KQ by r square। वो तो है। 2q का आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए व्हाट यू शुड रिमेंबर कि इफ सम पॉइंट इज इनसाइड द शेल देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड द KQ by r square, दैट्स इट। ठीक है, चलो आ जाओ। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे कौन कौन देगा, पहले वो बता। प्लस 2q अंदर है। प्लस 2q देगा, माइनस 2q, सबका लिख लेते हैं पहले, मतलब सो दैट यू डोंट मिस। तो S1 S2 लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ S1 S2। ठीक है, चलो इसका बताओ। डू वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ प्लस 2q फॉर दिस पॉइंट? It is like inside of इज इट अ शेल? प्लस 2q शेल point charge. पॉइंट चाहे तो फिर आएगा ना KQ by r square। चमका तेरे को? शेल है क्या ये? शेल रहा तो अंदर जीरो बोलेगा, पॉइंट चार्ज है। समझ में आया तेरे को? हाँ, नेक्स्ट बोल। Then S1 का आएगा ना, क्योंकि वो S1, ये S1 है, हाँ ये पॉइंट उसके अंदर है कि बाहर है? पॉइंट अंदर है, तो अंदर है तो फिर आएगा क्या? नहीं हाँ ठीक है, नेक्स्ट S2 ये है,
पॉइंट यहाँ पे अंदर है, तो फील्ड आया क्या? What you should write as a note if you have not understood this properly, when you talk about electric field, शेल का क्या होता है भाई? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हो तो E इनसाइड इज जीरो, है ना, आउटसाइड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये शेल की बात चल रही है, समझा क्या? और V का क्या होता है? इनसाइड इज के क्यू बाय कैपिटल आर एंड आउटसाइड इज के क्यू बाय स्मॉल आर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इफ इट्स अ पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज की बात करें तो उससे तो हमेशा फील्ड पोटेंशियल दोनों आने वाला है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर। इफ इट्स अ पॉइंट चार्ज इट विल गिव ऑलवेज पोटेंशियल एंड फील्ड। समझ में आया कि बाउंसर क्या है? समझा क्या? तो समझा एक चीज, ठीक है, राइट? अर्थिंग, ओ सॉरी शील्डिंग, सॉरी वो जो था जो आपने बताया वो कंडक्टिंग के लिए थ्रू तुमने को कराया मैं शेल्स, हाँ सब एसएनसी कराया मैंने, हाँ उसमें देखा तुमने क्या क्या था? वही तो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और भी कॉल्ड इसको फैराडेज केज। हाँ ये देखा है पढ़े सो ये कार्स में और सब में होता है ना। ठीक है, व्हाट इज डाउट? बाद में लिख लूंगा, ठीक है। लेट्स से यू अंडरस्टूड अभी ये असाइनमेंट, ठीक है। लेट्स से देयर इज अ कंडक्टर, तुम्हें समझ में आ गया, तो बता रहा हूँ वापस से, एक रिविजिट करो बस। इफ आई क्रिएट अ कैविटी हियर इनसाइड, तो अगर ये चार्ज मैं बाहर दे रहा था यहाँ से, अगर इफ आई पुट अ चार्ज Q फ्रॉम आउटसाइड, तो वी नो दैट द चार्ज विल बी रिसाइडिंग ऑन द आउटर सरफेस ओनली। अब वो कैविटी बनाने से वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, तो चार्ज तो अभी भी आउटर सरफेस पे रहेगा, isn't it correct? Now you tell me, because of this Q out, will there be any electric field inside the cavity? No. ठीक है, तो I know that due to outside charges, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड चार्ज से जीरो मिल रहा है, तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी में घुस नहीं सकता। डू यू एग्री और नॉट? बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, क्या वो कैविटी को में घुस सकता है क्या? नहीं घुस सकता। समझ में आ रहा है क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, ओके। अच्छा, ये पॉइंट सही है। अच्छा, इफ आई टेक, ये तो केस 1 ले लिया हमने। केस 2 जो हमारा था कि अगर एक देयर इज अ चार्ज इनसाइड प्लस Q, तो वी हैव लर्नड दैट इफ देयर इज अ चार्ज इनसाइड यहाँ पे प्लस Q, ओके, तो यहाँ पे माइनस Q इंड्यूस हो जाएगा, है ना, ठीक है। उसका मतलब ये है कि यू अंडरस्टैंड, उसका मतलब तुम क्या बोल रहे हो बताया क्या, कि इसका जो पॉइंट, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हो रहा है Q का, यहां पे अगर माइनस Q आ जाता है तो इट विल एंड एट दिस पॉइंट ओनली। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड Q का शुरू हुआ उसको खत्म इसी में होना है। दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी। वी आर टॉकिंग अबाउट इंड्यूस्ड चार्जेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं जा रहा। Whatever electric field is created inside the cavity, it will not go outside because there is a negative charge induced on the surface, and electric field lines start from positive and end on the negative, है कि नहीं? This same goes for negative charge, negative है तो उल्टा हो जाएगा। समझा? अगर एक नेगेटिव चार्ज यहाँ डाल दूंगा मैं तो पॉजिटिव आ जाएगा, जो अंदर ही, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है वो अंदर ही रहता है, वो बाहर नहीं आता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं जाने वाला। डू यू एग्री और नॉट? समझ में आ रहा है? ये जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये बाहर जाने वाला है कि नहीं? क्योंकि एक और सुनो, ये पूरे रीजन में जो डॉटेड रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। समझ में आया क्या? तो इट्स लाइक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, E inside is not going outside, ठीक है, is not affecting outside field। समझ में आ रहा है क्या? या you can say it is confined in this cavity only। Do you agree or not? अंदर का फील्ड बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, बाहर का फील्ड अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। ये जो कंडक्टिंग मटेरियल है, इट काइंड ऑफ फॉर्म्स अ बॉर्डर। इफ यू सी, ठीक है, ये जो कंडक्टिंग मटेरियल है, इट फॉर्म्स अ बॉर्डर बिटवीन द इनसाइड वर्ल्ड एंड आउटसाइड। द इनसाइड वर्ल्ड जो है, इट इज ऑब्लिवियस टू आउटसाइड वर्ल्ड, एंड सेम आउटसाइड का इनसाइड से फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ये बॉर्डर, ये E इक्वल टू 0 का एक बॉर्डर बना के रखा है। समझा? यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो इसी में रह जाएगा वो, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो यहाँ के लिए है वो, इसके लिए नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इज मेकिंग सेंस? ठीक है, इसी सेटअप को फैराडेज केज बोलते हैं, क्योंकि
देखो जैसे व्हेन वी डू इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट जिसमें बहुत हाई वोल्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, समझ में आ रहा है क्या? उसको क्या करते हैं हम लोग, ऐसे केज केज लिटरली वी यूज केजेस, ऐसे केज वेज बना देते हैं हम लोग। अब देखो ऐसे मैश बनाया तो भी चल जाएगा, मतलब समझ में आया क्या? जरूरी नहीं है मतलब इट भी कंटिन्यूस शीट, मैश रहा तो भी वो वायरलेस केज जैसे काम करता है। अगर द पॉइंट मतलब से जैसे ये देख, जैसे केज, जैसे ये समझ लो ऐसे रख लिया, ऐसे जरूरी नहीं मुझे हेमिस्फीयर का केज बनाना है, आई कैन मेक अ मैश आल्सो आउट ऑफ दिस, ऐसे कुछ। तो दिस आल्सो वर्क्स लाइक अ फैराडेज केज ओनली। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट सब करते हैं, ठीक है, जहाँ पे चार्ज लीकेज का पॉसिबिलिटी होता है, या वी वांट उल्टा कि वी डोंट वांट कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू इंटरफियर इन माय इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, तो वैसे एक्सपेरिमेंट हम एक मेटल केज के अंदर कर लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या? सो दैट बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफियर ना करे मेरे फील्ड के साथ, या उल्टा कि अगर मैं नहीं चाहता कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बाहर की चीजों को अफेक्ट करे, तो उसको हम एक केज के अंदर कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं शील्डिंग। और यही रीजन है कि अगर समझ लो तुम कार वार में हो और लाइटनिंग हो जाए, तो इट इज एडवाइज्ड कि यू शुड बी स्टेइंग इन द कार इटसेल्फ। लाइटनिंग हुआ भी अगर, ठीक है, लाइटनिंग हुआ भी अगर, ठीक है, तो ये बाहर का जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो बाहर से ही बाहर जाए रहेगा, एंड देन बिकॉज ग्राउंडेड है तो इट विल गो ग्राउंड पे, तुम अंदर सेफ रहोगे। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शील्डिंग। शील्डिंग कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि हमको पता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है भी, ठीक है, तो वो उसी रीजन में कन्फाइंड है बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड चार्जेस, दैट लाइन इज नॉट गोइंग आउटसाइड। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, दिस फॉर्म्स लाइक अ बॉर्डर, ये ऐसा बॉर्डर बनाया जाता है, ये आउटसाइड वाले को इनसाइड वाले को अलग कर देता है, मतलब तो ये एक शील्ड जैसा बिहेव करता है। और शील्ड का मतलब ये नहीं कि दैट्स बी कंटीन्यूअस शीट, ऐसा मैश रहेगा तो ये काम चल जाता है। समझ में आया ना? ठीक है, तो तुम देखोगे जाके, यू कैन जस्ट पुट फैराडेज केज, ओके, एंड यू फाइंड वेरी गुड। एक यूट्यूब चैनल है इलेक्ट्रिक बूम करके, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, हाँ, जाओ जाके देखो, अच्छा एक्सपेरिमेंट करते हैं वो लोग, ठीक है, ओके, हाँ, तो भावनाएं आ गई, ठीक है, तो जाके देखो, मतलब जाके देखो, वहां पे मजा आएगा तुम लोग को, ठीक है। उसने फैराडेज केज पे भी एक्सपेरिमेंट्स किए, तो यू शुड अंडरस्टैंड द कांसेप्ट वेरी प्रॉपर्ली। यू एनी डाउट्स हियर? समझ में आया क्या? अभी सुनो, कभी कभी क्या करते हैं ना वो लोग, ऐसे डायग्राम देते हैं हमको, एक स्फीयर दिया है ऐसे हम परफेक्टली सिमेट्रिक, मैं थोड़ा गंदा बना दिया, तो अच्छा बात है, देखो समझ लो, ऐसा कुछ दिया हमको, ओके, और बोला है कि यहाँ पे एक चार्ज, दिस इज सेंटर, और एक चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू, बोला इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ। कैसे बनेंगे? दिस इज कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये ऑफ सेंटर है, सेंटर पे होता अगर, सी इफ दिस इज सेंटर, एग्जैक्टली सेंटर पे होता, तो क्या होता कि जो इंडक्शन होता है वो सिमेट्रिक होता ना, कॉपी होता है क्या? देखो इफ इट वाज एट सेंटर, ठीक है, इमेजिन, अभी मैं इसको हटा तो नहीं सकता कि पूरे हट जाता है ये, देखो समझ लो यहाँ पे चार्ज नहीं होता, यहाँ पे होता प्लस क्यू, तो आई कुड हैव सेड कि जो माइनस क्यू होगा वो ऐसे एग्जैक्ट सिमेट्रिक है ना, तो अगर लाइंस दिख रहा तो ऐसे, करेक्ट, ओके, दिस विल बी द केस इन दिस, मतलब बीच में रहेगा एग्जैक्टली, तो और यहाँ से जो चार्जेस इंड्यूस होंगे वो भी यूनिफॉर्म होंगे, तो बाहर का शेप भी यूनिफॉर्म है, तो वहां पे लाइंस ऐसे जाएंगे, देखो, करेक्ट, बिकॉज जो इंड्यूस हो रहा है, अंदर चार्ज आया तो बाहर भी चार्ज रीअपीयर होगा ना, न्यूट्रल है ये, ठीक है, तो दिस वुड बी अ डायग्राम इफ इट वाज एट सेंटर। ये केस में क्या होगा कि दिस इज एक्चुअली नियर टू दिस, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन ज्यादा होता है, यहाँ पे इंडक्शन भी ज्यादा है ना, और यहाँ पे कम, तो लाइन शुड गो लाइक दिस, ऐसे, मतलब यहाँ पे ऐसे ज्यादा डेंसिटी दिखना चाहिए, करेक्ट, और यहाँ पे शुड भी कम, कुछ लाइंस यहाँ पे, करेक्ट। हाउएवर ये तो इनर सरफेस हो गया, आउटर में क्या फर्क पड़ रहा है उससे? आउटर में तो क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो आउटर का इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी ऐसे रहेगा, इट विल बी यूनिफॉर्म। चमका में क्या बोल रहा हूँ, दिस चेंज विल बी ओनली इन द इनसाइड, यू सी द आउटसाइड वर्ल्ड इज बिहेविंग द सेम वे, ये केस में भी और एक केस में भी। बोलने का मतलब क्या है कि देख, आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, इफ आई हैव अ शेप लाइक दिस, कि अंदर यूनिफॉर्म शेप है और बाहर ऐसे नॉन यूनिफॉर्म शेप है, और बीच में सेंटर में चार्ज रखा, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म, और बाहर कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म,
ठीक है। हाउएवर अब ये इज योर शेप लाइक दिस, अंदर नॉन यूनिफॉर्म और बाहर भी नॉन यूनिफॉर्म, और यहाँ पे चार्ज रखा, अंदर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म, है ना? वाई? बिकॉज डेंसिटी कहीं ज्यादा कहीं कम। फुट शार्प एडजस्ट पे क्या बोलते हैं, यू नो दैट, ज्यादा रहता है, ठीक है, सिग्मा ज्यादा रहता है। तो अंदर विल बी नॉन यूनिफॉर्म और बाहर भी नॉन यूनिफॉर्म, समझा क्या? ठीक है। और लास्ट केस वाला ये वाला केस कि अगर ऐसा दिया है कि अंदर ऐसे और बाहर ऐसे स्मूथ, और यहाँ पे रखा है चार्ज क्यू, अभी अंदर नॉन यूनिफॉर्म, अंदर नॉन यूनिफॉर्म बाहर यूनिफॉर्म। आगे घटने कॉन्सेप्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर फंक्शन। समझ में आ रहा है कैसा होगा? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनको बनाने आना चाहिए, समझने में आना चाहिए कहाँ पे यूनिफॉर्म कहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म, समझा क्या? नॉन यूनिफॉर्म 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 और कुछ जैसे यू यू बचा है क्या? यू तो क्या यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, ये वाला केस है, ये वाला केस है ना, ये वाला केस हो गया, राइट? समझ में आएगी बाउंसर क्या भाई? समझा? दिस इज यू फॉर्मेट ना, ये यू और ये यू, इज मेकिंग सेंस? अब वो सेंटर पे है अभी, तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, यू हैव टू बी अवेयर कि अंदर का शेप यूनिफॉर्म है कि नहीं, ठीक है? अंदर का शेप यूनिफॉर्म है तो चार्ज सेंटर पे कि ऑफ सेंटर है, समझा क्या? अगर ये देख यहाँ पे शेप यूनिफॉर्म है पर चार्ज ऑफ सेंटर है, तो इसलिए क्या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया यहाँ पर। समझ में आ रहा है क्या? तो दोनों चीज का शेप भी इंपॉर्टेंट है और चार्ज का प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? बाहर वाले का टेंशन नहीं होता है, बाहर वाला तो अगर शेप नॉन यूनिफॉर्म है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। एनी क्वेश्चंस एनीवन? डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? इनफ, टेक अ ब्रेक। ब्रेक खत्म ना लेक्चर, होम ब्रेक, सर डब्ल्यू आई कल तक का ब्रेक।